Hello बच्चों, good morning. So myself Dayalchan Pathak, I welcome you all to my channel Physics Made Easy by DCP. So we were discussing electricity chapter in class 10th and I have already given 4 lectures relative to charge, current, potential and properties of charges. Clear? So if you have not seen that, first go through these all, then now today. What is today new? Now before that we will discuss few points. Now see here, if we have a wire is a conductor. When we will connect this wire through battery, through cell or battery, combination of cells is called battery. This is a cell. Then what will happen? From positive to negative, current start flowing through this wire. This we have discussed earlier. Now, and to oppose this current, there is always a resistance. There is a force which opposes the current, that is called resistance. We have discussed about it. Now, how the resistance are represented? कैसे represent किए जाते हैं? How you will show that resistance is there or not? The symbol of resistance is this. This is a symbol of a resistance. ये किसका symbol है? Resistance का. इसे हम क्या बोलते हैं? Resistance. बट आपको दो मिलेंगे, एक ऐसा मिलेगा और एक आपको ऐसा भी मिल सकता है. देखिए, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, ये भी रेजिस्टेंस का सिंबल है. यह है कांस्टेंट रेजिस्टेंस का, मींस अगर इसकी वैल्यू 10 ओम है तो 10 ओम ही रहेगी. यह है वेरिएबल रेजिस्टेंस. क्या है? वेरिएबल रेजिस्टेंस. वेरिएबल रेजिस्टेंस मींस इट विल कंटिन्यूअसली चेंजेबल. ये चेंज होता रहेगा, ये फिक्स नहीं होगा, इसकी वैल्यू बदलती रहेगी. दिस इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस. Clear? So this was, we have discussed this all. So the symbol of resistance is this. This is the symbol of resistance. This is the symbol of variable resistance. Variable मतलब जो बदलता रहता, चेंज होता रहता. कुछ चीजें ऐसी तो फिक्स है, जैसे इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है. यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम. इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है तो इट विल रिमेन 10 ओम ऑलवेज. अगर इस तरह का एरो लगा हुआ है, इसका मतलब इसका अगर अभी इसकी रेजिस्टेंस 10 ओम बता रहा है तो दैट मीन्स इट इज नॉट फिक्स. मे बी इट इज 9, हो सकता है 9 हो जाए, हो सकता है 12 हो जाए. तो चेंजेबल को वेरिएबल बोलते हैं. क्लियर? आज का टॉपिक क्या है? व्हाट इज न्यू टुडे? व्हाट वी विल डिस्कस टुडे? टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स. हम किसका कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, या फिर आप कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस. क्लियर? कंबाइन करना, कंबाइन मतलब जोड़ना. Combination of resistance to connect many resistances together, that is called combination of resistances. To connect many resistances together, that is called combination of resistance. Combination of resistance is mainly of 3 type. कितने तरह का combination होता है? 3. क्या क्या है वो? Number first, series combination. Number first is series combination. Number second is called parallel combination. Number third is called mixed combination. Mixed combination मतलब series plus parallel, both. So here in your syllabus we will discuss about these two, means NCERT according to NCERT, series and parallel combination. So resistances, to combine many resistances together, that is called combination of resistances, and this combination we can do by 3 methods. हम ये जो जोड़ना है, जैसे इस कॉम्बिनेशन किसे बोलते हैं? जैसे आई हैव टू, दीज आर 2 ग्रीन मार्क, दिस इज कॉल्ड ब्लू मार्कर्स, दिस इज 1 ब्लैक 1 रेड. इफ आई विल कंबाइन दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ मार्कर्स. जोड़ रहा हूं ना, एक के पीछे कैसे भी जोड़ू, दैट इज द कॉम्बिनेशन. सिमिलरली इफ वी विल कनेक्ट, वी विल जॉइन, वी विल ऐड, या we will connect them together to many resistances, that is called combination of resistances, and this we can do in 3 methods. क्योंकि देखिए रेजिस्टेंस को ऐसे जोड़ सकते हैं, देखो मैं मार्कर्स को ऐसे जोड़ सकता हूँ एक के पीछे एक, या फिर ऐसे भी जोड़ सकता हूँ, जोड़ना ही तो है मैंने. सो सिमिलरली कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस आर ऑफ 3 टाइप: सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, एंड नंबर थर्ड इज मिक्स. मिक्स मीन्स सीरीज एंड प्लस पैरेलल. सो वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट इट. Very very important for competitive exam, very important numerical. Number first, we will discuss series combination. Number first point we will discuss about series combination. किसके बारे में डिस्कस करेंगे? Series combination. Series. Now how you will connect in series combination? When many resistances are given to you, suppose many resistances, this is R1,
R2, R3, like this many resistances are Rn, many resistances are given to you. Now if you want to connect them, if you want to join them in series, how you will join? What is series combination? In series combination, every resistances are how many terminals? 2. Every resistances have 2 terminals. प्रत्येक रेजिस्टेंस के कितने टर्मिनल्स होंगे? 2. What is series combination? See here. If you connect resistances in such a manner, if you will connect the resistances in such a manner that कि अगर हम resistances को इस तरह से जोड़ें कि the second end, this is first end, this is second, the second end of first resistance is connected with the second end of, if the second end of first resistance connected to the first end of second, and the second end of second is connected to first end of whose? First end of third, and so on and so on. जैसे अगर हम फर्स्ट रेजिस्टेंस के सेकंड एंड को दूसरे के पहले से, दूसरे के दूसरे को तीसरे के पहले से, तीसरे के दूसरे को चौथे के पहले से, मींस पहले का दूसरा दूसरे के पहले से, दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले से, इस तरह से सो ऑन. इफ विल कनेक्ट देम एंड हाउ मेनी टर्मिनल विल लेफ्ट फाइनली? पहले का फर्स्ट और लास्ट का सेकंड. दीज टू इफ विल कनेक्ट थ्रू ए बैटरी, थ्रू एमीटर and a key and battery, this combination is called series combination. इस combination को क्या बोलेंगे? Series combination. So what is series combination? If we will connect many resistances in such a way that the second end of first is connected to first of second, and second of second is connected to first of third, so on, and the first end of first and second end of last resistance connected through battery with the help of key and ammeter, then this type of combination is called series combination. देखो सीढ़ी जैसी बनी है ना, यहाँ से जाए तो यहाँ तक जा सकते हैं, तो this type of combination is called series combination. तो इस तरह के combination को क्या बोलते हैं हम? series combination बोलते हैं. Now here between these two end you will connect what? Voltmeter. This is the diagram for series combination. When you will connect it through series, what will happen? When you will connect it through battery, we know when you will connect through battery, current will start to flow. So from battery there will be current, and this current will remain same for all. सबके लिए क्या रहेगी? सेम. अगर यहाँ से आई तो इसमें भी आई जाएगी, इसमें भी आई जाएगी, इसमें भी आई जाएगी, इसमें भी आई जाएगी. So for all it will remain same. So in series combination, what will be remain same? I will remain same, but their R are different. इसका R R1 है, इसका R R2 है, R3 R4. V इक्वल टू क्या होता है? IR. If I is same, I इक्वल टू V अपॉन R. I इक्वल टू V अपॉन R. R अगर डिफरेंट है, I सेम है, तो V क्या होगा? V will also different. मान ली इसका V है V1, इसका V है V2, इसका V है V3 और इसका V Vn so on. देखिए ना, V इक्वल टू IR. दिस इज द ओम्स लॉ. I इक्वल टू V अपॉन R. इफ I सेम फॉर ऑल, देखिए ये पानी यहाँ से आया, पानी मान लीजिए इसको, वाटर यहाँ से आया तो इन सब में सेम जाएगा, है ना. करंट यहाँ से आया तो सब में सेम जाएगा. और करंट सेम है, R इज डिफरेंट, सो V विल बी ऑल्सो डिफरेंट. तो V भी उनका क्या होगा? अलग अलग. तो सीरीज कॉम्बिनेशन टू क्वालिटीज आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन. नंबर फर्स्ट, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट रिमेन सेम बट पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट रेजिस्टर्स इज डिफरेंट. अलग अलग रेजिस्टर्स का पोटेंशियल अलग अलग होगा, पर सबका करंट क्या होगा? सेम. एक का करंट अगर 2 एम्पियर है, सो फॉर ऑल द करंट विल रिमेन 2 एम्पियर ओनली, बट देयर पोटेंशियल्स विल बी डिफरेंट. क्लियर? हाउ मच टोटल पोटेंशियल ऑफ बैटरी? लेट द टोटल पोटेंशियल ऑफ बैटरी इज V. टोटल पोटेंशियल कितना है बैटरी का? V है. सो नाउ हाउ वी विल डू? सी, पोटेंशियल मीन्स होता है एनर्जी. पोटेंशियल मीन्स क्या होता है? एनर्जी. तो क्या होगा? देखिए, इसका पोटेंशियल V1 ले लिया, इसका V2 ले लिया, इसका V3 हो गया, इसका Vn हो गया, डॉट 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 डॉट. पोटेंशियल विल बी डिफरेंट बट करंट विल रिमेन सेम. चलिए देखते हैं हाउ मच द टोटल पोटेंशियल. टोटल पोटेंशियल वाज V, तो V किसके इक्वल होगा? V1 V2 V3 डॉट 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 Vn. होगा नहीं होगा? टोटल पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट बिकॉज एनर्जी नेदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड एंड पोटेंशियल इज
जस्ट एनर्जी। पोटेंशियल क्या है? एनर्जी। बैटरी क्या देती है? एनर्जी देती है। दैट मीन्स पोटेंशियल इज जस्ट एनर्जी। सो एनर्जी neither gain nor destroy. So V should be this one. Clear? Now we know Ohm's law V equal to आया। So V1 क्या होना चाहिए? I R1. I will remain same. V2 I R2 dot 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 like this. If you write Vn I Rn. Yes or no? Putting values, इसी को ए मान लेते हैं इन इक्वेशन ए। वैल्यूज को पुट कीजिए इक्वेशन ए में, क्या आएगा बोलिए? वी की जगह पर पुट कर दिया आई इंटू आर, आई इंटू आर वन, आई इंटू आर टू, आई इंटू आर थ्री डॉट 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 आई इंटू आर एन। यस और नो? कितना आ जाएगा? आई कॉमन आया, आई कॉमन ले सकते हैं, आर वन, आर टू, आर थ्री डॉट 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 आर एन। आई आई कैंसिल, आर इक्वल टू आर वन, आर टू, आर थ्री डॉट 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 आर एन। दिस इज द टोटल, आर इज total resistance, effective resistance combination. So in series combination the total resistance will be sum of individual resistance. जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसमें जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो सारे रेजिस्टेंस का क्या होगा? सम होगा। अगर सम होगा तो ये क्या आएगा? आर टोटल इक्वल टू मैक्सिमम। ये मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम आर टोटल ग्रेटर होगा आर वन से भी, आर टोटल आर टू से भी बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा ये। सो इट इज अ मैक्सिमम। सो इन विच कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम? इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सो वी कैन राइट, सो in series combination total resistance will be maximum. total resistance क्या होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में? मैक्सिमम होगा। क्लियर? सो देर आर थ्री थिंग्स फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। नंबर फर्स्ट, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट रिमेन सेम, बिकॉज वो इस तरह से जुड़े हैं कि सबकी क्या है? सेम है। सबका लाइन एक लाइन में आ रहा है, सो सबका करंट क्या है? सेम है, बट पोटेंशियल्स आर डिफरेंट एंड देयर टोटल रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम। क्लियर? दिस इज द फॉर्मूला फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। तो कभी भी आपको सीरीज में रेजिस्टेंस मिलेंगे तो आप टोटल कैसे निकालेंगे? R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 डॉट। क्लियर? देख लेते हैं। एक क्वेश्चन मान लीजिए आपके पास आ गया, क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन दे दिया आपको, फाइंड टोटल रेजिस्टेंस, फाइंड टोटल रेजिस्टेंस। ये क्वेश्चन है और ये है रेजिस्टेंसेस 2 ओम, 5 ओम, 6 ओम। चलिए टोटल रेजिस्टेंस निकालना है इसका। Obviously, first you will check how they are connected. You will take the current. Current ले जाएंगे, current is I. So I इसमें भी आ गई, इसी से जुड़ा, इसमें भी आ गई, इसी से जुड़ा, इसमें भी आ गई। That means current remains same. When current is same, सर डायग्राम से चेक करके नहीं, डायग्राम से आपको नहीं पता चलेगा सीरीज एंड कॉम्बिनेशन। अभी तो बहुत आसानी से पता चल जाना। How you will check? You will check that current is going same or different. If current is going same, it is series. R 2 ohm, 5 ohm, 6 ohm are in series and we know, हम जानते हैं R टोटल कितना होता है सीरीज में? R1, R2, R3, 3 है तो 3 हो गया, डॉट 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 जितने भी हैं। R टोटल कितना आ जाएगा? 2 प्लस 5 प्लस 6 कितना आ गया? 7 प्लस 6 हो गया, कितना आ गया? 13 ओम। हाउ मच ओम? 13 ohm. This is the answer. Clear? So this is a simple one question. Question we will do. One lecture will be from the question only. So this is series combination. So how many qualities are in series? Series means CD जैसी बनानी है आपने. For example आप याद रखने के लिए रख सकते हैं series means CD. एक के पीछे एक के पीछे एक. So the second end of first is connected to first of second. Second of second is connected to first of third. Second of third is connected to first of fourth. So on. Then the first end of first and second end of last is connected through battery. This combination is called series combination. Now there are few disadvantages of series combination. कुछ disadvantages भी हैं series combination। क्या हैं disadvantages? देखिए ध्यान से।
सपोज मैंने सीरीज में जोड़ दिया अपने घर के डिवाइस, एक बल्ब, फिर इसके बाद मैंने जोड़ दिया टीवी, ठीक है, फिर मैंने जोड़ दिया आपका एसी। ये मैंने कैसे जोड़ दिए? नाउ दीज ऑल आर कनेक्टेड इन, कैसे जोड़ दिए? इन सीरीज। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, क्या क्या प्रॉब्लम है? देखिए, द करंट विल रिमेन फॉर सेम फॉर ऑल, एवरीबडी नो करंट सबके लिए क्या रहेगा? सेम। नंबर फर्स्ट ड्रॉबैक, डिफरेंट डिवाइसेस आर रिक्वायर्ड डिफरेंट करंट। बल्ब जलने के लिए छोटी करंट की जरूरत होती है, एसी के लिए बड़ी करंट की जरूरत होती है। डिफरेंट डिवाइसेस आर रिक्वायर्ड डिफरेंट करंट, सो दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज नॉट गुड, डिवाइसेस विल नॉट प्रॉपर वर्क, है ना, बिकॉज बल्ब के लिए अलग करंट चाहिए, टीवी के लिए अलग चाहिए, एसी के लिए अलग चाहिए। अगर मैं इसमें बल्ब के बराबर करंट डालूं तो ये दो काम नहीं करेंगे, और अगर मैं एसी के बराबर करंट डाल दूं तो ये दोनों फूक जाएंगे। सो फर्स्ट ड्रॉबैक, दिस इज नॉट गुड फॉर होम सर्किट्स, वी कांट कनेक्ट द डिवाइसेस इन सीरीज। हमारे घरों के डिवाइसेस सीरीज में नहीं कनेक्टेड है। क्यों नहीं है? क्योंकि डिफरेंट डिवाइसेस रिक्वायर डिफरेंट करंट, इन दिस कंडीशन द करंट विल रिमेन सेम। नंबर सेकंड, दूसरा ड्रॉबैक क्या? मान लीजिए बल्ब फ्यूज हो गया, देयर इज सम प्रॉब्लम इन द बल्ब, बल्ब के जो सर्किट है वो कट गए तो नाउ करंट विल नॉट फ्लो फ्रॉम बल्ब, बल्ब से आगे फ्लो ही नहीं होगा। सो टीवी भी काम नहीं करेगा और रेफ्रिजरेटर भी काम नहीं करेगा। दैट मीन्स इफ देयर इज एनी फॉल्ट इन वन डिवाइस then the whole circuit will destroy. This is the second drawback. ऐसा आजकल ऐसा नहीं होता होम्स में, अगर आपका एक बल्ब फ्यूज है तो टीवी फ्रिज बाकी चीजें तो चलती हैं, बिकॉज दे आर नॉट इन सीरीज, क्योंकि ये किस में नहीं है? सीरीज में। सो सीरीज के दो ड्रॉबैक है, डिफरेंट डिवाइसेस आर रिक्वायर्ड डिफरेंट करंट, सो बट द करंट विल रिमेन सेम फॉर ऑल। नंबर सेकंड, इफ देयर इज सम प्रॉब्लम इन वन डिवाइस देन होल सर्किट विल नॉट वर्क, पूरा का पूरा सर्किट काम नहीं करेगा। सो नाउ अब बात करते हैं नंबर सेकंड इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। नंबर सेकंड कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल। पैरेलल मींस कहते हैं ना, यू इज स्टैंडिंग पैरेलल टू हिम और हर, इसके पैरेलल खड़ा है। पैरेलल मतलब एक दूसरे के पैरेलल खड़ा करना कहते हैं ना, पैरेलल। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज दिस इज ए रेजिस्टेंस R, नाउ इसके पैरेलल करना है। पैरेलल मतलब दिस इज R2, इसके पैरेलल हो गया। नाउ दिस इज R3, डॉट 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 लाइक दिस, dot 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 like this is Rn. Parallel means now 1 over 1 1 1 1. How we will connect in parallel? See, when you want to connect the many devices parallel, then the first end of all the resistor is connected through a single point, suppose A, and the second end of all the resistances is connected through another point called B, and these 2 points are connected through battery. These 2 points are connected through battery or cell. अभी मैंने cell यूज किया। So this combination is called parallel combination. So now what is parallel combination? In parallel combination, the first end of all the resistances is connected through a single point, and second end of all the resistors is connected through another single point, and these 2 points are connected through cell. This combination is called parallel combination. Now there will be a current from battery. Battery से क्या निकल के आएगी? Current. Now when the current will reach at this point, from this point current have to go move in all direction. Current को सब में जाना होगा. So now from here the current will distribute. Current क्या हो जाएगी? बट जाएगी. Yes or no? That means in series, in parallel combination, current is different. Now V equal to I into R. R is different, current is also different. That means V will remain same because product will remain same. So in series combination, what is different? Current will be different. See, current is different, but potential remain same. Current will be different, but potential remain same. पोटेंशियल सेम रहेगा पर करंट क्या रहेगी? डिफरेंट। तो चलिए, करंट neither क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय। हियर I कितना होगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 डॉट 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 IN. यस और नो? एनर्जी, करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम is called current. Rate of flow of charge is called current, and charge remain conserved. That means current remain conserved. Current neither create nor destroyed. यहाँ से I आई तो यही तो I बटे इनमें. This is I,
सो यही I1 I2 I3 IN में बटा है, तो दैट मीन्स टोटल I विल बी I1 प्लस I2 I3। तो वी नो, इसे इक्वेशन ए कर लेते हैं, वी नो ओम्स लॉ। व्हाट इज ओम्स लॉ? V इक्वल टू IR, सो I इक्वल टू V अपॉन R, I1 इक्वल टू V अपॉन R1, V विल रिमेन सेम, I2 V अपॉन R2 डॉट 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 IN V अपॉन RN, V upon, yes or no? Now this is the values. अब क्या करेंगे? Putting all values in equation number 1 A, equation number A में रख देंगे। V I की जगह रखेंगे V upon R, I1 V upon R1, V upon R2, V upon R3 डॉट 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 V upon RN। I1 की वैल्यू लिख दिया I2, तो क्या आ जाएगा? V इज कॉमन फॉर ऑल, फ्रॉम ऑल, तो क्या आ जाएगा? R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस डॉट 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 1 अपॉन RN। V कैंसिल आउट, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस डॉट 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 1 अपॉन RN। दिस इज द इक्वेशन टू फाइंड आउट टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। नाउ R, the total resistance reciprocal है, क्या है? Reciprocal of all resistances, yes or no? सारे रेजिस्टेंसेस क्या क्या है? उल्टा है। उल्टा है मतलब अगर 2 ओम के मैं 4 रेजिस्टेंसेस ऐड करूं, देखिए पैरेलल में 2 ओम के 4 रेजिस्टेंसेस, 2 2 2 2, सो एलसीएम इज 2 1 2 3 4, कितना आ गया? 4 कट गया 2, तो 1 अपॉन R इक्वल टू कितना आ गया? 2, R इक्वल टू 1/2, कितना आ गया? 0.5। दैट मीन्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस विल बी मिनिमम, कम होगा, सबसे कम होगा। द टोटल रेजिस्टेंस विल बी मिनिमम, R1 से भी कम होगा, R2 से भी कम होगा, सबसे कम निकल के आ गया। जबकि सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस क्या आ रहा था? सबसे ज्यादा। इन पैरेलल टोटल रेजिस्टेंस विल बी मिनिमम, टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगा? मिनिमम। क्लियर? नाउ सो क्या क्या क्वालिटी पता चली इन पैरेलल? नंबर फर्स्ट, टोटल रेजिस्टेंस विल बी मिनिमम। नंबर सेकंड, इन सीरीज, इन पैरेलल करंट विल रिमेन, वोल्टेज विल रिमेन सेम बट करंट विल बी डिफरेंट। क्लियर? नंबर थर्ड, ऑल होम सर्किट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सारे सर्किट किस में जुड़े होते हैं? पैरेलल। होम सर्किट किस में जुड़े हैं? पैरेलल में। व्हाट इज द बेनिफिट्स? क्या है एडवांटेजेस? क्या है? देखिए, मान लीजिए ये एक बल्ब है और इसके पैरेलल में मैंने क्या जोड़ा? एक टीवी, और इसी के पैरेलल में क्या जोड़ा है? एक एसी। डिफरेंट डिवाइसेस आर रिक्वायर डिफरेंट करेंट्स, डिफरेंट डिवाइसेस आर रिक्वायर डिफरेंट करेंट्स, सो फॉर डिफरेंट डिवाइसेस डिफरेंट करंट विल गो। अगर एक डिवाइस खराब हो गई तो उससे मान लो बल्ब नहीं चल रहा है, तो एसी और टीवी तो चलेंगे, बिकॉज देयर सर्किट्स आर कंप्लीट। सो दिस इज द एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस है रेजिस्टेंस विल बी मिनिमम, रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। रेजिस्टेंस इज अपोजिट फोर्स, वो जितना कम होगा करंट विल बी गुड। सो इन पैरेलल टोटल रेजिस्टेंस विल बी लेस, फर्स्ट थिंग। नंबर सेकंड, इन पैरेलल if there is some problem with some device, other devices will work proper, केवल वही डिवाइस खराब होगी। नंबर थर्ड, different devices require different current, in series they will get different current, और सीरीज में उन्हें क्या मिलेगा? different current, there is no problem, they will get the different current or different devices. Is it clear? So this was the second combination of resistances. So we come to know that in series total R is R1 plus R2 plus R3 dot 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 Rn. Few things you have to keep in your mind. What are the things? See, series and parallel. What are the number first? Current remain same. Here, current different. करंट डिफरेंट, यहां पर करंट क्या रहेगी? डिफरेंट। यहां पर वोल्टेज डिफरेंट, यहां पर वोल्टेज रिमेन सेम। याद रखिएगा, वोल्टेज रिमेन सेम। नंबर थर्ड,
हेयर टोटल आर इज R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 RN, क्या रहेगा मैक्सिमम। हेयर टोटल आर इज 1 अपॉन R, R1 प्लस R2 डॉट 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 1 अपॉन RN, क्या आएगा मिनिमम, क्या आएगा मिनिमम। क्लियर। हेयर द रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड वन आफ्टर वन अदर, देखिए एक के पीछे एक जुड़ा होता है ना, लाइक दिस। हेयर द रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड वन ओवर अदर, एक के ऊपर ये। Yes or no? Yes or no? So these are the basic two type of combination of resistance. Number third is mix. Mix आपके सिलेबस में नहीं है, मिक्स मतलब होता है, चलिए डिस्कस करते हैं। So this is clear. Now, number third type of combination is called mix combination. Number third is mix combination. What is mix combination? Mix combination means in which resistances are some resistances are connected in series, some are connected in parallel. This is called mix. See, R1, R2, how they are connected? They are in parallel. Then R3, how it is in series. R4 in series. This is called mix combination. ये क्या combination है? This is the mix combination. ये है आपका mix combination. Mix मतलब है few are in series, few are in parallel. So you will get question from this mix one. मिक्स आपके सिलेबस में नहीं है। मिक्स मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल, नथिंग एल्स। क्लियर। उसमें कुछ रेजिस्टेंसेस सीरीज में होंगे, जो सीरीज में होंगे उनका सीरीज से निकालेंगे, जो पैरेलल में होंगे उनका पैरेलल में निकालेंगे। इज इट क्लियर। चलिए अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन बात है क्वेश्चन, फाइंड टोटल रेजिस्टेंस and current for each resistor. Find total resistance and current for each resistor. इजी वाला ले रहे हैं सबसे पहले। We are going to start from easy one. V equal to 10 volt. How much volt? Cell का potential है 10 volt. Now this is the question. Question is given. Question में दिया find total resistance of the circuit and current for each resistor. चलिए चेक करते हैं। देखिए when you will connect it through battery, what will happen? Through battery current will start flowing. Let the current through battery is I. It will be I. So for all it will remain same. If current is same, that means they are in series. When current remains same, they are in series. दिख रहा है वैसे भी, they are in series. Now 1 ohm, 2 ohm and 5 ohm are in series. So total resistance in series, what is the formula? और सीरीज फॉर्मूला R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 आर देयर, R3 तक लिखेंगे। R हो जाएगा कितना 1 प्लस 2 प्लस 5, कितना आ गया 8 ओम। सो द टोटल रेजिस्टेंस इज हाउ मच 8 ओम। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया 8 ओम। दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस। नाउ दैट मीन्स एट द प्लेस ऑफ दिस 3 न्यू डायग्राम, नया डायग्राम क्या होगा, डायग्राम नया जरूर बनाइएगा। इन सब 3 की जगह पर कितना ओम है 8 ओम। कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 3, इन तीनों को लिखने के बजाय 8 ओम का एक लिखिए, उसे किससे जोड़ देंगे हम बैटरी से ऑफ 10। क्लियर। सो न्यू सर्किट विल बी दिस, एट द प्लेस ऑफ दिस 3 देयर विल बी 1। नाउ हियर R इज हाउ मच 8 ओम, V इज हाउ मच 10 वोल्ट। क्लियर। I इक्वल टू कितना, हाउ मच, इज देयर एनी रिलेशन? यस सर। V नो, V इक्वल टू IR, I इक्वल टू V अपॉन R, ओम्स लॉ V इक्वल टू IR। V इज 10 अपॉन 8, कितना आ गया 5/4 एम्पियर, 5/4 एम्पियर। यूनिट इज एम्पियर। सो कितना आ गया करंट आ गया 5/4। नाउ करंट रिमेन सेम फॉर 1 ओम I1 कितना 5/4 एम्पियर, 2 ओम I2 5/4 एम्पियर, 5 ओम I3 कितना आएगा 5/4 एम्पियर, बिकॉज करंट इज रिमेन सेम, करंट इज रिमेन
सेम, तो सबका करंट क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो I1 भी उतना ही होगा, I2 भी उतना ही होगा और I3 भी उतना ही होगा। क्लियर? चलते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन आपके पास है, कैसा क्वेश्चन है? क्वेश्चन आपको आ गया, फाइंड टोटल रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज फॉर ईच रजिस्टर, वोल्टेज फॉर ईच रजिस्टर। चलिए दिस इज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। क्लियर? 90 वोल्ट ये क्वेश्चन है। अब आप देखिए इसमें क्या निकालना है। इसमें आपसे पूछा है कि फाइंड टोटल रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल ऑफ फॉर ईच रेजिस्टर, प्रत्येक का पोटेंशियल निकालना है और टोटल रेजिस्टेंस बताना है। देखिए व्हेन यू विल कनेक्ट इट थ्रू बैटरी, बैटरी विल प्रोवाइड करंट I, this current will flow from each same because that means they are in series, but their potential will be different because अगर करंट सेम है तो पोटेंशियल क्या रहेगी, डिफरेंट, क्योंकि इनका रेजिस्टेंस डिफरेंट है। V इक्वल टू IR है, सो अगर I सेम है सबका, R डिफरेंट है तो V क्या होगा, डिफरेंट होगा। सो लेट देयर V is V1, V2, V3. Now how they are 6 ohm, 12 ohm and 9 ohm are in series. How they are? They are in series. So total, what will be total in series? R equal to R1, R2, R3. Total R 6, 12 plus 18 कितना हो गया? कितना आ गया? 36 ohm. 12 and 6, 18, 18 plus 18, 36 ohm. Clear? This is the total resistance. Clear? Now new diagram. नया डायग्राम क्या होगा? New diagram. Now what will be the new diagram? चलिए देखते हैं न्यू डायग्राम क्या होगा। न्यू डायग्राम होगा एट द प्लेस ऑफ दिस 3 देयर विल बी ओनली 1। इन तीन की जगह कितना होगा? 6 से हम बैटरी से जोड़ देंगे। कितने वोल्ट की बैटरी है? बैटरी इज ऑफ 90 वोल्ट। दिस इज द न्यू डायग्राम। क्लियर? So now this diagram is over. इसके प्लेस पर क्या आ गया? नया डायग्राम बन गया। This is the new diagram total. Now here, sorry. Now here, R equal to how much? 36 ohm. R is 36 ohm. V of battery is how much? 90 volt. First we will find out I. I equal to question mark. Is there any relation? Yes sir. We know V equal to IR, I equal to V upon R, 90 upon 36, 90 upon 36। काटते हैं इसको, किससे कटेगा? 9 से कट सकता है, 10 और 9 4 जा 36 है ना। तो आ गया आपका 5/2, 2 से कटा 5, 2 से 2 तो 2.54 एम्पियर। हाउ मच? 2.5 एम्पियर। कितना आ गया करंट? 2.5 एम्पियर। नाउ करंट दे आर इन सीरीज, तो करंट विल रिमेन सेम। दे आर इन सीरीज, सो करंट विल रिमेन सेम। सो I1 कितना होगा? 2.5 एम्पियर। I2 भी कितना होगा? 2.5 एम्पियर। I3 भी कितना होगा? 2.5, बिकॉज दिस विल रिमेन सेम। फॉर R1, अब हमने करंट तो नहीं निकालना, हमने क्या निकालना? पोटेंशियल। फॉर R1 ओम्स लॉ, क्या होगा ओम्स लॉ? V इक्वल टू ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR। सो फॉर V1 I इंटू R1, I रिमेन सेम। सो V1 इक्वल टू I कितना है? 2.5। R1 इज हाउ मच? R1 6। सॉल्व कर देंगे थ्रू 12 और 15, तो कितना आ गया? 15 वोल्ट। हाउ मच वोल्ट? 15 वोल्ट। दिस इज द पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट। नाउ फॉर सेकेंड R2, V2 इक्वल टू IR2, I विल रिमेन सेम। ओम्स लॉ लगा लेंगे वापस सेकंड के लिए। ओम्स लॉ सबके लिए एप्लीकेबल है फॉर सेकंड। सो V2 इक्वल टू I 2.5 इंटू 12,
कितना आ जाएगा, 630 वोल्ट। कितना आ गया, 30 वोल्ट। यस और नो। सिमिलरली फॉर R3, V3 इक्वल टू IR3, I is 2.5 into 9, 2.5 into 9। ऐसा किया हमने, 60, 24, 30, 2.5 into 9 आएगा ना, 9 क्यों, 2.5 into 18। थर्ड वन R3 is 18, 2.9 into 18, तो कितना आ गया अभी, तो ये आ गया आपका 45 आएगा, 40, 45 वोल्ट। कितना वोल्ट आ गया, 45 वोल्ट। कितना वोल्ट आया, 45। अब ऐड कर लीजिए इनको, 45 प्लस 30, 75, 75 प्लस 15, 90, टोटल विल कम टू 90। दिस इज द पोटेंशियल फॉर ईच। क्लियर, तो तीनों का पोटेंशियल हमने, तीनों का वोल्टेज हमने निकाल दिया, R1, R2, R3। दिस क्वेश्चन विल बी वेरी वेरी इजी। बहुत सारे आसान से क्वेश्चन होंगे आपके पास, जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज्यादा आसान होते हैं। चलो ना, क्वेश्चन नेक्स्ट है, हाउ मेनी रजिस्टर्स of 2 ohm should be connected to get 180 ohm in series। यह है, हाउ मैनी रेजिस्टेंसेस ऑफ 2 ohm, कितने रेजिस्टेंसेस 2 ohm के जोड़े जाएं। हाउ मैनी रजिस्टर्स ऑफ 2 ohm should be connected to get 180 ohm। Now, total is how much? Total is 180 ohm. R1, 1 is how much? 1 is of 2 ohm। एक कितने का है, 2 ohm का। हमसे पूछा हाउ मच नंबर्स, कितने होंगे, कितने जोड़े जाएं, नंबर में कितने जोड़े जाएं, कि टोटल कितने नंबर्स में जोड़े जाएं कि टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 180 ओम। कितने रेजिस्टेंसेस को जोड़ना चाहिए। नाउ किसमें जोड़ना है, सीरीज में। वी नो इन सीरीज R is R1 plus R2 dot 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 R। लेट n रेजिस्टेंसेस आर कनेक्ट। मैंने मान लिया n रेजिस्टेंसेस आर कनेक्ट, मान लीजिए n रेजिस्टेंसेस जोड़े, तो टोटल कितना हो गया, और R1 R2 R3 डॉट 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 R n, तो कितना हो जाएगा, R हो गया 180, R1 2, R2 भी 2, R3 2 ओम के ही जोड़ने ना, Rn भी 2। क्लियर, तो कितने 2 हो जाएंगे, कितने 2 होंगे। देखिए अगर मैं आपको 2 जोड़ने को बोलूं 2 बार, कितना हो गया, 4 मतलब देखिए 2 प्लस 2 कितना हुआ, 4। तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 2 बार आ गया। 3 बार जोड़ू तो 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना हुआ, 6। तो मैं कह सकता हूँ 3 इंटू 2, 4 बार। तो n बार जोड़ा तो कितना होगा, n इंटू 2। भाई देखो 2 बार जोड़ा 2 इंटू 2, 2 को 2 बार जोड़ा तो 2 इंटू 2, 3 बार जोड़ा तो 3 इंटू 2, 4 बार जोड़ूंगा तो 8 आएगा। 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2, 5 बार जोड़ूंगा 5 इंटू 2। n बार जोड़ा तो n इंटू 2, n इक्वल टू 180/2, हाउ मच, 90। तो कितने रेजिस्टर्स जोड़ने होंगे, 90 रेजिस्टर्स शुड बी कनेक्टेड टू गेट 90 resistors of 2 ohm should be connected in parallel to get total resistance how much ohm, 180 ohm। Clear? So this is very very important, you see, go through it, this is clear। 2 जोड़ेंगे तो 2 ohm, 3 जोड़ेंगे तो 3 ohm, 4 जोड़ेंगे तो 4 ohm, 5 जोड़ेंगे तो 5 ohm, 6 जोड़ेंगे तो 6 ohm, 7 जोड़ेंगे तो 7 ohm। कितने भी आप जोड़े इतने ही ohm आपको मिलेगा। Is it clear? Yes or no? Clear? चलिए अब बात करते हैं अगला। मान लीजिए आपको क्वेश्चन मिल गया, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। लेट द न्यू क्वेश्चन इज दिस। मान लीजिए अगला क्वेश्चन ये है, फाइंड टोटल रेजिस्टेंस, फाइंड टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस निकालना।
ये दिया है क्वेश्चन। नाउ दिस इज द मिक्स वैरायटी, ये मिक्स वैरायटी, इसमें सीरीज में भी है पैरेलल में भी, कह नहीं सकते सीरीज में पैरेलल है। पता कैसे लगाएंगे कौन पैरेलल है कौन सीरीज, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। नाउ देयर विल बी करंट फ्रॉम दिस सर्किट, सो दिस करंट इज आई। नाउ एट दिस पॉइंट दिस करंट विल डिस्ट्रीब्यूट I1, I2 एंड I3 होगा। अगेन दिस थ्री विल कंबाइन एंड अगेन फॉर्म I, दोबारा क्या बना लेंगे I। अब जिनमें I जा रही है, दोनों में I जा रही है, इसका मतलब दोनों कैसे में है सीरीज। देखिए इनमें I1, I2, I3, इसका मतलब अलग अलग जा रही है, तो ये तीन किस में है पैरेलल में। क्लियर? तो दिस टू आर इन सीरीज एंड दिस थ्री आर इन पैरेलल। तो क्या हो जाएगा पैरेलल में 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm आर इन पैरेलल। सो टोटल 1/r करके निकालते हैं, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 इन पैरेलल। हाउ यू विल फाइंड आउट टोटल इन पैरेलल? टोटल इज 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। क्लियर? कितना हो जाएगा 1/r इक्वल टू 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। एलसीएम कितना हो गया 6। तो क्या हो जाएगा, पहला आ जाएगा 6, सबको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ करेंगे 6 को डिवाइड करेंगे 1 से 6, यहाँ करेंगे 6/3 प्लस 6/3 2। तो कितना आ गया 1/r इक्वल टू 11/6, r इक्वल टू 11, 6/11, उल्टा कर देंगे 6/11। दिस इज द टोटल ऑफ दिस। नाउ हियर 3 ohm एंड 6 ohm आर इन सीरीज, ये दोनों कैसे सीरीज में, तो टोटल हो जाएगा R1 प्लस R2, R इक्वल टू 3 प्लस 6, कितना हो गया 9 ohm। तो इन तीनों का ये हो गया, इन दोनों का ये हो गया। नाउ न्यू डायग्राम, नया डायग्राम क्या होगा, नया डायग्राम हमेशा बनाएंगे तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। नाउ न्यू डायग्राम, व्हाट विल बी द न्यू डायग्राम? नाउ नया डायग्राम होगा, इन तीनों के बदले आ जाएगा कितना 6/11 ohm और उन दोनों के बदले कितना आ जाएगा 9 ohm। नाउ टेल मी हाउ दीज टू, अब ये दोनों कैसे हैं देखो जरा। नाउ दीज टू आर इन कैसे हैं सीरीज। क्लियर? यस और नो? नाउ 6/11 ohm एंड 9 ohm एंड 9 ohm इन सीरीज, किसमें सीरीज। सो टोटल इन दोनों का टोटल R हो जाएगा R1 प्लस R2, तो कितना आएगा 6/11 प्लस 9, 9 के नीचे 1 हो गया। एलसीएम कितना आ गया, कितना आएगा एलसीएम? R इक्वल टू एलसीएम विल बी 11, 6 प्लस 99, मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई तो करोगे। R इक्वल टू कितना आ गया 105/11 ohm। दिस इज द आंसर। सो it is very easy, you have to check which one are in series, which one are in parallel, then you can find out the value. Clear? Yes or no? So go through it, see it. Clear? चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कनेक्ट करके देखते हैं क्या उसका आंसर आता है। चलिए चेक करते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको ले रहा हूं, बुक से ले रहा हूं एक क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन है फाइंड टोटल रेजिस्टेंस, फाइंड टोटल रेजिस्टेंस। मान लीजिए आपको क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। चलिए ये दिया ये दिया पार्ट। दिस इज द क्वेश्चन। नाउ आपका टास्क है फाइंड टोटल रेजिस्टेंस। अभी मैं केवल टोटल रेजिस्टेंस वाले करा रहा हूँ, आपको मैं एक पूरी एक्सरसाइज, एक पूरा लेक्चर न्यूमेरिकल्स का दूंगा। डोंट वरी अबाउट इट, वी विल डू इन होल लेक्चर न्यूमेरिकल। नाउ हियर यू हैव टास्क टू फाइंड आउट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस गिवन सर्किट। नाउ हाउ विल फाइंड आउट, लेट्स सी। When it is connected through battery, a current will start to flow. Let the current is I. At this point, when current will reach at this point, from here it will distribute. Let in upper part I1, lower part I2. इसमें I1 आएगी तो इसमें भी I1, इसमें I2 आई तो इसमें भी I2.
अगेन दे विल कंबाइन एंड फाइनली फॉर्म आई। क्लियर? नाउ अब कैसा दिख रहा है देखिए, here I1, in this one also I1, same current means these two are in series. Here I2, here also I2, these also are in series. If current is same, that means they are in series. So what will like, here 2 ohm and 4 ohm are in series, so total R will be R1 plus R2, 2 plus 4 कितना आ गया 6 ohm. Similarly 6 ohm and 4 ohm, 6 ohm and 4 ohm are also in series. ये भी किस में है? सीरीज में. जो दिख रहा है टोटल R हो जाएगा R1 plus R2, 6 plus 4 कितना हो गया 10 ohm. How much? 10 ohm. निकाल दिया. नाउ अब बनाएंगे हम नया डायग्राम. सॉल्व करते हैं. हमको जो दिख रहा था न्यू डायग्राम. क्या होगा न्यू डायग्राम? न्यू डायग्राम. What will be the new diagram? New diagram will be this. At the place of these two there is 6 ohm. At the place of this lower one 10 ohm. ये हो गया डायग्राम. अब clear? Now check how they are. Current will come from here. I. At this point current will distribute I1 and I2. Both different currents are going. These two are now 6 ohm and 10 ohm are in parallel. कैसे हैं? Parallel हैं. Different currents are going. That means they are parallel. Parallel में कैसे निकालते हैं? 1 upon R equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 equal to 1 upon R equal to 1 upon 6 plus 1 upon 10. LCM is कितना ले सकते हैं? 30. चलिए 30 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं. अगर आपको नहीं आता तो 60 भी ले सकते हैं. 30 आ जाएगा 5 plus 3 8 by 30 आएगा. क्लियर? 8 by 30 तो R आ जाएगा 30 by 8, 15 by 4, 15 by 4. क्लियर? तो आ जाएगा 7.5 by 2, 3 6 हो गया. पॉइंट 3.7 5 3.75. दिस इज द आंसर. ओम. क्लियर? सॉल्व. तो आपको चेक करना है इट दिस प्रोसेस दैट यू हैव टू चेक करंट इज गोइंग सेम और डिफरेंट. तो वन बाय वन यू हैव टू सॉल्व. एक एक करके पार्ट सॉल्व करना. जैसे मैंने पहले 2 सॉल्व किए, फिर दोनों नया डायग्राम बनाते रहेंगे. आफ्टर एवरी स्टेप यू विल मेक न्यू डायग्राम. देन यू कम टू नो दैट व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप. अगला स्टेप क्या है? यू ओनली कम टू नो व्हेन यू मेक ए न्यू डायग्राम. Is it clear? So I hope that you have learned something from it. Please see it, go through it. You will get the answers of each question. Whatever you will do, definitely you will get the. But you have to go through carefully through whole video. ठीक है? पलट के इधर का उधर थोड़ा थोड़ा देख लिया. Like this you will not get anything. You have to go through whole video. Then only, and this is very important part of for the board exam. Definitely you are getting one question from here. Is it clear? So तब तक के लिए आपको छोड़े जाता हूँ इसी के साथ. Start doing the question, start doing the numerical part, then bye.